पंजाब के जिला मोगा के गांव समालसर के एक साधारण परिवार की लड़की उपिंदरजीत कौर बराड़ ने पीसीएस की परीक्षा में पंजाब भर में पहला स्थान हासिल किया। परिणाम घोषित होने के बाद से समूचे इलाके में खुशी का माहौल है। वह उपिंदरजीत कौर के घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। यहाँ बता दें कि उपिंदरजीत कौर बराड़ अपने माता पिता की इकलौती संतान है। वह उसके माता पिता सरकारी अध्यापक है। एक महिला होने के नाते उपिंदरजीत कौर बराड़ अपने मन में महिला उत्थान का सपना संजोए हुए हैं। मीडिया के रूबरू उपिंदरजीत कौर बराड़ के पिता स्वर्ण सिंह व उसकी माता बलजीत कौर ने अपनी बेटी की इस जीत पर खुशी जाहिर करते हुए बताया कि उपिंदरजीत कौर शुरू से ही मेहनती थी। वह उसकी पढ़ाई में विशेष रुचि थी, जिसके चलते ही आज उसने ये मुकाम हासिल किया। क्या नाम है जी आपका? हाँ जी, मेरा नाम स्वर्ण सिंह बराड़ है जी। स्वर्ण सिंह जी, आपकी बेटी ने पीसीएस में पहला रैंक हासिल किया है, कैसा लग रहा है आपको, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है जी। एक लड़की होने के बावजूद उसने इतना बड़ा रैंक हासिल किया है, तो आपको, जैसे आप टीचर हो, यस, तो आपको नहीं लगता था उसको टीचर बनाना चाहिए, या आम पेरेंट्स की यही सोच होती है? ਵੱਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਕਲੌਤੀ ਬੇਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਵੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। उपिंदरजीत बचपन से कैसी थी पढ़ाई में, या उसका मन कैसे लगता था? ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਬਿਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗੀ ਸਟੱਡੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਸਿਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ 15-16 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਿਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇਗੀ। तो आपको कैसे मन में आया, कहाँ से प्रेरणा मिली कि इसको पीसीएस करवाना है, या इसके कैसे पता चला आपको ये पढ़ सकती है और कर सकती है? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਕੰਪੈरेटिवली। एक रूरल एरिया से, छोटे से गांव से होने की वजह से भी आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा इतने बड़ा रैंक हासिल करने के लिए, तैयारी करवाने में या कुछ और? ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਘਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੀ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਕ ਸੀ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। तो अभी आप क्या सोच रहे हो, और आगे और क्या करना है इसने? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬਾਕੀ परमात्मा ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ, ਜੋ परमात्मा ਚਾਹੇਗਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। तो जैसे कि पेरेंट्स आमतौर पर लड़कियों को बाहर भेजने से थोड़ा डरते हैं, झिझकते हैं, या पढ़ाने में भी कुछ ऐसा होता है भी टीचर बना दो, या है ना छोटे मोटे कोर्स करवा दो। यस। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे पेरेंट्स को? मैं ये पेरेंट्स को पहला तो मैसेज देना चाहांगा भी ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇਕਲੌਤੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਨੀ ਬੇਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਨੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। अभी आप उपिंदरजीत को क्या संदेश मैसेज देना चाहोगे, या कैसी सर्विस करनी चाहिए उसको, कैसे सेवा करेगा? ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। आपकी बेटी को पढ़ाई के अलावा खेल कूद में या कोई और शौक थे? ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ, ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਬਿਟ ਸੀ। तो हमने सुना आपने कनाडा की फाइल भी लगाई हुई थी, अभी आपका क्या मन है? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ PR ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੀ ਦਾ ਤਾਂ 1% ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣੀ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ।
तो क्या अभी आपकी बेटी को पीसीएस का रैंक हासिल हो गया, अभी वो ऑफिसर बनने वाली हैं, तो क्या अभी भी आप कनाडा की तरफ रुख करने वाले हैं या नहीं करने वाले? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਰੁਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਬੇਟੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम बलजीत कौर है। जिनको जी आपकी बेटी ने पीसीएस में पहला रैंक हासिल किया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। कैसे तैयारी चलती थी रुपिंदर जी? ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, 15 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਸੀਟਿੰਗ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। तो आपका सहयोग कैसा रहा उसको? आप कैसे उसको सहयोग करते थे पढ़ने में, पढ़ाई करने में? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਟਾइम टेबल बनाया होया सी, उस तरह टाइम ना देना। तो मेरी बचपन से ही पढ़ाई में इतनी रुचि रखती थी? हाँ जी, बचपन से बहुत पढ़ाई में रुचि रखती थी। तो अभी आगे उसका क्या मन है, क्या करने वाली है आगे? आगे वो कहती मैं और अफसर बनूंगी। क्या नाम है जी आपका? उपिंदरजीत कौर बराड़। उपिंदर जी, आपने पीसीएस में पहला रैंक हासिल किया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी महसूस हो रही है, सब बहुत मान महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसे पता चला आपका पहला रैंक आ गया पंजाब में? एक्चुअली मैंने जब रिज़ल्ट चेक किया तब देखा कि उपिंदरजीत कौर बराड़, तो उसके बाद मुझे पीपीएससी की सेक्रेटरीज़ का कॉल आया। देवर कॉलिंग के आपको पहले बता दें, फिर उसके बाद मतलब तो उसके मैंने मेनली मतलब जब रिज़ल्ट देखा तब मुझे पता चला। तो आपको कैसे प्रेरणा मिली कि आपने ये पीसीएस करना है और यहाँ ये एग्ज़ाम देना है? सिविल सर्विसेज में आने का हमेशा से ही ड्रीम था, हमेशा से ही एक मतलब एम रहा है कि सिविल सर्विसेज में आना है, तो दिस वाज फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। आपकी कहाँ तक की क्वालिफिकेशन है, कहाँ तक पढ़ाई कर चुके हैं? मैंने बीएससी ऑनर्स जोलॉजी और एमएससी ऑनर्स जोलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी से की है। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा बेसिकली मेरे फादर साहब ने मुझे दी है। मतलब अभी मेरी फैमिली में तो कोई नहीं है जो इस सर्विसेज में गया हो, बट मेरे फादर साहब जिन्होंने मुझे मतलब मेनली प्रेरणा दी सिविल सर्विसेज में आने की। तो आपके परिवार में कौन कौन क्या क्या करते हैं, फादर मदर? यस, बेसिकली हम 3 मेंबर्स हैं। माय मदर फादर बोथ आर गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स, एंड उस तो बिना मेरे कज़न्स एंड मेरी फैमिली है। जो मेरे कज़न्स हैं वो एक ड्राइवर हैं और कनाडा में रहते हैं, और दूसरे मेरे साथ ही रहते हैं। कभी आपको नहीं लगा ये पंजाब का भारत को छोड़ के आप कनाडा सेटल हो जाओ या कुछ ऐसा? नहीं, पंजाब में रहना और यहाँ के लोगों की सेवा करने में अलग मज़ा है। तो आप अपना आइडल किसको मानते हो? मैं अपना आइडल अपने पापा को मानती हूँ। तो जैसे कि सब पेरेंट्स का रहता है, जो टीचर होते हैं वो बोलते हैं बच्चों को पढ़ाओ, टीचर बना दो और शादी कर दो बस, पर आपको कैसा सपोर्ट रहा परिवार में? नहीं, मुझे हमेशा से एक फ्री सपोर्ट दिया गया है कि जो आपने करना है, जो आप करना चाहते हो वो करो, कभी भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। सो दैट इज़ द मेन रीज़न फॉर सक्सेस। कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको, कितने घंटे टाइम देते थे आप अपनी पढ़ाई को, स्टडी को? डेली मैं कहती हूँ कि कंसिस्टेंसी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं डेली 8 घंटे के अराउंड पढ़ती थी, और ये मतलब मेरी टाइमिंग थी। हमने सुना आपने आपके फादर साहब ने कनाडा की पीआर की फाइल अप्लाई की थी, लेकिन आपने मना कर दिया, क्यों मना कर दिया? उस टाइम मतलब ये लग रहा था कि यहाँ पे रहना ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे भी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, सो दैट इज़ द मेन रीज़न। तो मन में क्या चल रहा है? आप पीसीएस क्लियर कर गए हो, Yes. कौन सी बुराइयां आपको लगता है जब आप किसी स्टेज पे पहुंचोगे तो कौन सी बुराइयां आप दूर करना चाहोगे? जो बेसिकली जैसे एक लड़की होने के नाते, एक रूरल बैकग्राउंड से आने के नाते, मैं सबसे पहले ये चाहूँगी कि लड़कियाँ और आगे आएँ और आगे लोगों को आने का मौका मिले। सो दैट इज़ दी मेन जो है, और लोगों की सेवा करना ये मेन एम होंगे। आपका जो फ्रेंड सर्कल था वो कैसा था? मेरे फ्रेंड सर्कल जो मतलब मेरे जोलॉजी के फ्रेंड्स थे वो लोग इस फील्ड में नहीं हैं, और उसके बिना जो मतलब मेरे सिविल सर्विसेज में प्रेपरेशन कर रहे थे उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है इस यहाँ तक आने में। आपने कोचिंग कहाँ से ली? मैंने कोचिंग चंडीगढ़ से ली थी, और उसके बाद मेनली सेल्फ स्टडी पे फोकस किया। आपने एग्ज़ाम कब दिया था, रिजल्ट कब आया इसका? मैंने एग्ज़ाम 2021 में, अभी फरवरी में प्रीलिम्स हुआ था, अप्रैल में मेंस हुआ था, और अभी इसी मंथ इंटरव्यू हुई थी, और रिज़ल्ट कल ही डिक्लेयर हुआ। अभी आपके मन में क्या चल रहा है, अभी आगे क्या करने का, कौन से टारगेट आपके मन में है अभी तो जो टारगेट्स आप सिविल सर्विसेज में मान के चलते हैं उनको अचीव करने का है, और उसके बाद अगर हुआ तो यूपीएससी भी अटेम्प्ट जरूर दूंगी। तो हमने सुना आप आईपीएस की भी तैयारी कर रहे थे?
हाँ जी, मैंने बेसिकली यूपीएससी की तैयारी ही शुरू की थी। जो पीपीएससी था, ये दोनों चीज़ें मतलब आप टारगेट मान के चलते हो कि पंजाब स्टेट सिविल सर्विसेज और यूपीएससी, तो मैंने ये इकट्ठी तैयारी की थी। तो आप मतलब किस तरह से तैयारी आपके मन में किस तरह से आया कि अभी पीसीएस की तैयारी शुरू करनी है, और आपको गाइडेंस कहाँ से मिली, कितना टाइम देना है, कितनी पढ़ाई करनी है, किस तरह से तैयारी करनी है? आई थिंक इंटरनेट इज़ द बेस्ट गाइडेंस, और मेरे टीचर्स जो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया यहाँ तक आने में। और बेसिकली कंसिस्टेंसी जो चाहिए होती है कि प्रीलिम्स, मेंस और क्या क्या आपको आंसर राइटिंग करनी है, टेस्ट सीरीज़ देनी है, दैट इज़ द की। जी, आप एक लड़की होने के नाते आप दूसरी लड़कियों को क्या संदेश देना चाहोगे? दूसरी लड़कियों को यही संदेश है, और उनके पेरेंट्स को भी, उनको पढ़ने का मौका दिया जाए और उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। लड़कियाँ कुछ भी कर सकती हैं। जैसे कि आपने अकेले नहीं आपने तैयारी करके सब टेस्ट किया है, तो आप लड़कियों को क्या कहना चाहते हो? लड़कियां डरती हैं बाहर जाने से, या पेरेंट्स भी नहीं भेजते, तो आप उनके पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे? आई थिंक पेरेंट्स को लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, कि जहाँ पे वो पढ़ना चाहती हैं, जहाँ तक वो बढ़ना चाहती हैं, उनको बढ़ने का मौका देना चाहिए, तभी सक्सेस आएगी। जो लोग कनाडा जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, बच्चों में आजकल होड़ लगी हुई है, तो आप उनको क्या कहना चाहते हैं? आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो अ गुड वे, पर अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पे रह के कुछ अच्छा कर सकते हो, तो इसको भी ऑप्शन मानना चाहिए। दैट इज़ नॉट द सोल ऑप्शन। मोगा के स्मॉल सर से बिट्टू पुरबा।